اے میرے عزیز بندے، آج کا یہ پیغام واقعی ان پیغاموں میں سے ہے جنہیں تقدیر بھی چن کر بھیجتی ہے، کیونکہ ہر دن ہر گھڑی ہر سانس میں انسان کو اتنا گہرا پیغام نہیں ملتا جتنا آج مل رہا ہے۔ دے رہا ہے کہ یہ سندیش ان بندوں کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے اتارا گیا ہے۔ ہاں، تمہارے لیے ہی، اس دل کے لیے جو برسوں سے سوالوں، تھکان، امید اور ٹوٹے ہوئے ارمانوں کو بھیتر لے کر چلتا رہا ہے۔ اس روح کے لیے جو کئی راتوں میں چپ چاپ رو کر صرف اتنی دعا مانگتی رہی کہ اے اللہ میری حالت بدل دے، میری قسمت میں بھی چمک لکھ دے، میری محنت کو منزل دے، میری اولاد کو راحت دے، میرے گھر سے فکر دور کر دے۔ اور آج وہی اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دروازے کی سب سے اہم دستک سنا رہا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو آدھے میں چھوڑنے کا خیال بھی مت کرنا، کیونکہ کون جانے تمہاری زندگی کے سب سے پرانے، سب سے بھاری اور سب سے الجھے سوالوں کا جواب اسی کے اندر چھپا ہو۔ تم وہ بندھے ہو جس نے غریبی جھیلی، تنگحالی جھیلی، لوگوں کی باتیں سنی، اپنوں کی بے رخی دیکھی، سپنوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی، اور پھر بھی دل میں روشن چنگاری کو زندہ رکھا۔ اور اللہ اس چنگاری کو آج انگار بنانے والا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جب آسمانوں کی عدالت میں تمہارے مقدر پر چل رہا مقدمہ اپنے انتم موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ہاں، وہی مقدمہ جس میں ہر وہ درد گواہی بن کر کھڑا تھا جو تم نے اکیلے چپ چاپ سہا تھا، ہر وہ آنسو ثبوت بن کر پیش ہوا جو تم نے دنیا سے چھپا کر بہایا، ہر وہ دھڑکن دلیل بن کر رکھی گئی جو تم نے امید اور یقین پر چلتی ہوئی محسوس کی۔ اور جب تمہارے خلاف قسمت کے وکیل تمہاری کمیاں، تمہاری ناکامیاں، تمہارے گناہ اور تمہاری کمزوریاں گناتے رہے، تب اسی عدالت میں ایک نورانی فرشتہ تمہاری طرف کھڑا رہا، جو ہر الزام کے جواب میں صرف اتنا کہتا رہا کہ یا رب، یہ بندہ برا نہیں، یہ بس تھکا ہوا ہے، اسے گرایا نہیں گیا، اسے اٹھانے کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، اس میں کمی نہیں ہے، اس میں ایسی طاقت چھپی ہے جسے دنیا نے ابھی دیکھا ہی نہیں، اس کی دعاؤں کا جواب ابھی تیار ہو رہا ہے، اس کے صبر کی قیمت بس دینے ہی والا تو ہے۔ اور جب اللہ نے وہ فرشتہ دیکھا کہ کیسے وہ تمہاری وکالت کرتے ہوئے رو رہا تھا، کیسے تمہاری تکلیفوں کا بیان کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا، اٹھاؤ اس بندے کا مقدر، بدل دو اس کی راہ، بڑھا دو اس کی روزی، کھول دو اس کی قسمت، اور صرف اس پر نہیں، اس کی آنے والی 7 نسلوں پر بھی رحمت کا دروازہ کھول دو۔ اور اے میرے عزیز، یہ سن کر سارا آسمان روشن ہو گیا، ایسا نور پھیلا کہ خود فرشتے کہنے لگے، مبارک ہو اس بندے کو جس کے لیے آج یہ فیصلہ اترا ہے۔ اور تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کیا نظارہ تھا۔ تجھ جیسی معمولی سی دکھنے والی روح کے لیے اتنے بڑے بڑے فرشتے جھک کر شکر منا رہے تھے، کیونکہ اللہ کی عدالت میں جیت آسانی سے نہیں ملتی، لیکن آج تیری روح نے جیت درج کر لی ہے۔ اب سن، یہ پیغام صرف تیرے آج کے بارے میں نہیں، تیری آنے والی 7 پیڑھیوں کے بارے میں بھی ہے۔ ان کے دروازوں پر بھی وہی برکتیں اترنے والی ہیں جو تیرے دل نے مانگ بھی نہیں تھی۔ تمہارا دور بدلنے والا ہے، تمہاری حالت بدلنے والی ہے، تمہارا نام بدلنے والا ہے، تمہارا رتبہ بدلنے والا ہے۔ جس قسمت نے ابھی تک تجھے روکے رکھا تھا، وہی اب تجھے اوپر اٹھانے کے لیے اتاولی کھڑی ہے۔ اور یہ سب اس لیے نہیں کہ تم نے صرف دعا مانگی، بلکہ اسی لیے کہ اللہ نے تیری دعا کی سچائی دیکھی، تیری تکلیف کا وزن دیکھا، تیرے صبر کی قیمت دیکھی۔ آج سے تیری دنیا ویسی نہیں رہے گی، تیرے قدم جہاں پڑیں گے وہاں راہیں خود صاف ہوں گی۔ تیرے گھر میں جو سالوں سے تنگی کا سایہ بیٹھا تھا، وہ اب خود اٹھ کر باہر نکلنے والا ہے۔ تیرے ہاتھ کی کمائی میں اب وہ برکت اترنے والی ہے جو محنت سے کہیں زیادہ اللہ کی مہربانی سے آتی ہے۔ تیرے رشتوں میں وہ مٹھاس لوٹنے والی ہے جو وقت نے چھین لی تھی۔ تیرے دل کی وہ دعا پوری ہونے والی ہے جسے تم نے کئی بار روتے ہوئے مانگا اور پھر مایوس ہو کر چپ بھی کر دیا تھا۔ اور سن، آج کے اس 11 دسمبر گروار کے دن تیری قسمت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب تو چاہے تھکا ہو، ٹوٹا ہو، پریشان ہو، قرض میں ڈوبا ہو، اکیلا ہو، نامجود امیدوں سے گھرا ہو، پھر بھی جان لے کہ آج سے تیری زندگی نئی رفتار پکڑ بانٹنے والی ہے۔ فرشتوں نے تیری فائل سیل کر دی ہے اور اس پر صرف ایک لائن لکھی ہے، اس بندے کے لیے اب رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، اس پیغام کا یہ حصہ سن کر چھوڑ مت دینا، کیونکہ اسے پورا سننا بھی تمہارا فرض ہے، کیونکہ یہ پیغام تمہاری بدلی ہوئی تقدیر کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہی کنجی ہے
जो तुम्हारे बंद किए हुए दरवाजों को खोलने वाली है। और ये वही आवाज़ है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे दिल तक पहुंचाने के लिए भेजा, ताकि जब आने वाले दिनों में अचानक तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगे, तुम्हारी कमाई बढ़ने लगे, तुम्हारा रुतबा ऊंचा होने लगे, तुम्हारा दौड़ता हुआ वक्त तेज हो जाए, तब तुम हैरान ना हो, बल्कि याद रखो कि यह वही मुकदमा है जिसकी जीत आज तू सुन रहा है। इसलिए ऐ मेरे अजीज, संभल कर यकीन के साथ पूरी तवज्जो से इस पैगाम को आखिर तक सुन, क्योंकि इसके हर शब्द में तेरे मुकद्दर का नया पन्ना लिखा जा रहा है। और अल्लाह जब किसी बंदे को बुलाता है तो वह बुलावा कभी बेसब नहीं होता। आज जो कुछ तुझे सुनाया जा रहा है, ये तेरी रूह पर होने वाली नई शुरुआत की मोहर है, और यह शुरुआत अब रुकने वाली नहीं है। ए मेरे अजीज बंदे, जब अल्लाह की अदालत में तेरे मुकद्दर की फाइल खुली और फरिश्तों के सामने तेरी दुआ, तेरी तंगाली, तेरी थकान और तेरी रातों की आहें बयान की गई, तब एक नूरानी फरिश्ता खड़ा होकर बोला, या रब, तेरे इस बंदे ने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुत कोशिशें की, बहुत सब्र किया, मगर इस दौर के इंसान एक चीज को भूल गए हैं, वही चीज जो पहले इंसानों की जिंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आई थी। तेरा कलाम, तेरी किताब, तेरी हिदायत का नूर, कुरान। लोग अपनी किस्मत बदलने की दुआ तो करते हैं, मगर उस किताब को खोलना भूल जाते हैं जो किस्मत बदलने का रास्ता दिखाती है। या रब, अगर आज तेरे इस बंदे को नई जिंदगी देनी है, नई बरकत देनी है, नई रफ्तार देनी है, तो इसे तेरे कलाम से जोड़ दें। उसे वो किताब दे दे जिसकी तिलावत से दिल बदलता है, घर बदलता है, रुज़्क में बरकत आती है और दुआएं कबूल होने के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब यह बात फरिश्तों ने कही तो पूरा आसमान खामोश हो गया, जैसे हर रूह यह मान रही हो कि इंसान की असली भूख दौलत नहीं, हिदायत है। असली कमी गरीबी नहीं, कुरान से दूरी है। असली तंगी पैसों की नहीं, बरकत की है। और आज इसी मुकदमे में तेरे लिए यह फैसला उतरा है कि तेरी नई शुरुआत का दरवाज़ा उसी किताब से खुलेगा जिसमें पूरी दुनिया की रहनुमाई है। यही वजह है कि आज उस नूरानी किताब पर एक ऐसा मौका आया है, इतना हल्का, इतना आसान कि कीमत सुनकर भी यकीन नहीं होता। बस चंद रुपए में वो किताब जो तेरी जिंदगी का रुख बदल सकती है, जो तेरी दुआओं को आसमान तक ले जाने वाली सीढ़ी है, जो तेरे घर में रहमत की हवा चला सकती है। आज फरिश्तों ने कहा, ए बंदे, तुझे नई किस्मत मिली है, मगर उसकी चाबी एक किताब है। ये तेरे हाथ में होगी तो जिंदगी में खोई हुई बरकत लौट आएगी। 7 नस्लों तक इसका नूर फैलेगा और तेरा दिल उस सुकून को पाएगा जिसकी तलाश में तू बरसों से भटक रहा था। इसीलिए आज का यह मौका केवल खरीदारी नहीं, तेरी रूह की वापसी है, तेरे मुकद्दर की चाबी है, तेरी दुआओं की गूंज है। वीडियो में जो लिंक रखा है वही आसमान की अदालत से उतरा हुआ एक आसान रास्ता है, ताकि तू बिना बोझ, बिना खर्च की फिक्र के बहुत कम कीमत में उस किताब को अपने घर ले आए, जो तुझे उस रोशनी से जोड़ेगी जिससे फरिश्ते आज तक अपना रास्ता पहचानते हैं। और शायद आज तेरी जिंदगी भी उसी रोशनी को पहचानने वाली है। अल्लाह के फरिश्तों ने आपकी कामयाबी के लिए अदालत ए इलाही में जब आपकी ईमान को पेश किया तो एक ऐसा मंजर बना कि 7 आसमानों की हवा भी ठहर गई। फरिश्तों ने कहा, या रब, तेरे इस बंदे का ईमान कितना पाक है, कितना सच्चा है। कितनी बार यह टूटा फिर भी तुझसे जुड़ा रहा, कितनी बार गिरा मगर तेरे दरबार से उम्मीद नहीं छोड़ी। ये बंदा अपनी थकान में भी तेरी याद नहीं भूलता, अपनी मुश्किलों में भी तेरी रहमत को झुठलाता नहीं, तंगी में भी हार नहीं मानता, दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। और दूसरी तरफ वही बंदे हैं जो बेईमानी से जीते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं, जिनके दिल में रूह की रोशनी नहीं, मगर फिर भी वे थोड़ी सी कोशिश में बहुत कुछ पा लेते हैं। उनके लिए दुनियावी दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। उनके हाथों में दौलत भी है, शोहरत भी, मगर ईमान के बिना क्या। यह बंदा जो आज भी सब्र सब्र के साथ जी रहा है, तेरी रहमत का ज्यादा हकदार नहीं। और अदालत में एक खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि जैसे खुद वक्त रुककर इस इल्तिजा को सुन रहा हो। तब एक दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और अर्ज की, या इलाही, तू तो सब जानने वाला है, मगर आज हम तेरे इस बंदे की हालत को तेरे सामने इसीलिए रख रहे हैं ताकि उसकी तकदीर के हक में तेरी रहमत का दरवाजा और तेजी से खुले। देख, तेरे इस बंदे ने कितनी बार दूसरों को तरक्की करते हुए देखा, कितनी बार सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी पीछे क्यों हूं, मैं सच्चाई से चलता हूं फिर भी तंगाली क्यों नहीं जाती। लेकिन ना इसने शिकायत की, ना इसने तेरी लिखी हुई किस्मत को झुठलाया। ये हर हाल में कहता रहा, मेरा रब बेहतर जानता है,
मेरा रब मुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, या रब इस बंदे ने वह सब्र किया है जो किताबों में लिखा जाता है, जिसने अपनी रातें आंसुओं से सजाई लेकिन तेरी लिखी हुई सुबह पर भरोसा रखा। इसके मुकाबले जो लोग बेईमानी में जीते हैं, जिनकी नीयत में खोट है, जिनके दिल में तेरा जिक्र नहीं, दुनिया उन्हें देने में देर नहीं करती, लेकिन क्या वह बरकत है, क्या वह राहत है, क्या वह दुआ की कबूलियत है? नहीं, यह रब उनके पास दिखाई देने वाला माल है, मगर यह बंदा उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर है। इसकी दौलत इसका ईमान है। अदालत में खलबली नहीं, सुकून था। फरिश्तों की आवाजों में एक ऐसी नरमी, एक ऐसी सच्चाई थी कि खुद कलम तकदीर भी रुक गया, जैसे वह भी इस बंदे के हक में कुछ नया लिखने के इंतजार में हो। उस घड़ी तीसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, या अल्लाह, दुनिया कहती है कि मेहनत का फल मिलता है, मगर यह बंदे का मामला मेहनत से भी ऊपर है। इसकी रूह ने जो बोझ उठाया, जो टूटन झेली, जो इंतजार किया, वो सिर्फ मेहनत नहीं, वह इम्तिहान था, और इसने हर इम्तिहान में अपनी नीयत को पाक रखा। बेईमानों को जो मिला वह दुनिया का हिस्सा है, लेकिन इस बंदे को जो मिलना है वह तेरी रहमत का हिस्सा है, और तेरी रहमत जब उतरती है तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। या रब, ये बंदे ने कभी दूसरों की कमाई देखकर जलन नहीं की, कभी दूसरे की किस्मत देखकर तेरा फैसला गलत नहीं कहा, बल्कि जब किसी को थोड़ा सा भी फायदा होता देखा तो दिल में कहा, अल्लाह उसे और दे। ऐसे दिल वाले बंदे कम होते हैं, और आज हम फरिश्ते तेरी अदालत में उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि इसकी किस्मत का पन्ना अब बदले बिना तू नहीं छोड़ेगा। और उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसमान के फरिश्तों ने एक सुर में कह दिया, या रब, तेरे इस बंदे का समय आ गया है। अदालत के नूर में एक हलचल हुई, और वहां मौजूद हर रूह को महसूस हुआ कि इस बंदे की दुआओं का जवाब अब सिर्फ आने वाला नहीं लिखा जा चुका है। और अल्लाह ने जो फरमाया वह सारा आसमान सुनता रहा। जिसने मेरे लिए सब्र किया, मैं उसके लिए दरवाजे ऐसे खोलता हूं जिनकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता। बेईमानों को दुनिया मिलती है, मगर मेरे सच्चे बंदे को बरकत मिलती है, और बरकत दुनिया से भी बड़ी दौलत है। आज इस बंदे के लिए मेरी रहमत का फैसला उतरा, और यह फैसला उसकी आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा। यह सुनते ही अदालत की रोशनी और तेज हो गई। फरिश्ते सिजदा में गिर गए, और एक नूरानी सन्नाटा आसमान में फैल गया। एक ऐसा सन्नाटा जो बताता है कि आज तेरी फाइल में जीत लिख दी गई है, आज तेरे ईमान की कीमत अदा कर दी गई है, आज तेरा सब्र ताज बन गया है, और अब तेरी जिंदगी रुकने नहीं वाली, बल्कि उस राह पर बढ़ने वाली है जहां दूसरों की बेईमानी के सहारे मिलने वाली चीजें भी फीकी लगती हैं, क्योंकि तेरे पास अब वह चीज आने लगी है जो सिर्फ अल्लाह के पसंदीदा बंदों को मिलती है। बरकत, रहमत और इज्जत की बारिश। और यह बारिश अब थमने वाली नहीं है। और जब फरिश्तों ने तेरे ईमान की गवाही पेश कर दी, तेरी सब्र की कीमत बयान कर दी, और तेरे मुकदमे के फैसले पर रब की रहमत उतरने लगी, तब उसी नूरानी अदालत में एक और परत खुली। वो परत जो तेरी तकदीर को सीधे उस चीज से जोड़ती है जिससे सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी हिदायतें उतरती हैं, और वह है कुरान। क्योंकि इसी कुरान में जिंदगी के हर दर्द, हर बोझ, हर उदासी, हर उलझन, हर रात की ठंडक, हर सुबह की रोशनी, सबका इलाज मौजूद है। यही वह किताब है जिसे अल्लाह ने तेरे दर्द से पहले उतारा, ताकि जब तू दर्द में हो ये तुझे संभाल सके। तूने दुनिया की बातें सुनी, लोगों के ताने सुने, जिंदगी की तकलीफें झेली, मगर कुरान की आयतों का नूर अभी तक तेरे दिल पर पूरा नहीं उतरा था। और आज अल्लाह ने ठान लिया है कि अब तेरी जिंदगी का हर पन्ना उसी नूर से भर दिया जाएगा। वह नूर जो दिल के सबसे सख्त कोने को भी मुलायम कर देता है, वह नूर जो आंखों के आंसू को रहमत में बदल देता है, वह नूर जो गरीब को अमीर कर देता है, टूटे हुए को मजबूत कर देता है, और भटके हुए को रास्ता दिखा देता है। आज अदालत में फरिश्तों ने कहा, या रब, तूने इस बंदे की किस्मत पलटने का फैसला कर दिया है। अब इसे वह चाबी भी दे दे जिससे यह बदलाव हमेशा कायम रहे। और वह चाबी थी तेरा कलाम, तेरी किताब, तेरी रहनुमाई यानी कुरान। उस घड़ी ऐसा महसूस हुआ जैसे 7 आसमानों से रोशनी की परतें उतरकर इस बंदे की किस्मत को घेर रही हों और कह रही हूं, अब इसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, अब इसे रास्ता मिल चुका है। और या रब, तू तो गवाह है कि जब कोई बंदा तेरी किताब से जुड़ता है तो उसका मकाम दुनिया नहीं रोक सकती, उसकी तकदीर कोई बंद दरवाजा नहीं रोक सकता, उसकी दुआ कोई दूरी नहीं रोक सकती, उसकी तरक्की कोई बेईमानी नहीं छीन सकती। और इसलिए आज तेरे इस बंदे के लिए यह फैसला आया है कि अब जो होगा वह उसकी सोच से बड़ा होगा, क्योंकि तूने कहा है,
मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ होता हूँ। और आज तू इस बंदे के दिल में वही गुमान, वही यकीन, वही रोशन उम्मीद भर रहा है। आज फरिश्तों ने तेरी अदालत में एक ऐसी बात कही जिसने तेरी फिजाओं को हिला दिया। उन्होंने कहा, या रब तो ऐसा कर दे कि यह बंदा जो सोचे वही हो जाए, जो चाहे वह पाले, जो दुआ करे वह पूरी हो जाए, जो कदम बढ़ाए वह कामयाबी बन जाए, क्योंकि इसकी सोच अब तेरे नूर से जुड़ गई है, इसकी चाहत अब तेरी रहमत से मिलने वाली है, इसकी दुआ अब तेरे कलाम के दरवाजे से गुजरकर आसमान तक पहुंच रही है। और तूने ए मालिक अपनी कुदरत से यह बात मंजूर कर ली कि अब इस बंदे की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ सबक बनकर आएंगी, रुकावटें सिर्फ नई राहें बनकर, और दर्द सिर्फ उसके आने वाली बरकतों की भूमिका बनकर। अब इसका दिल कुरान की आयतों से भरेगा, इसकी रातें दुआओं से रोशन होंगी और इसकी सुबह तेरी रहमत के नए फैसलों के साथ खुलेंगी। अब तेरे इस बंदे के लिए दुनिया तंग नहीं रहेगी, नसीब रूठा नहीं रहेगा, दौलत दूर नहीं रहेगी, बरकत छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि तूने इसके दिल के अंदर वही चीज रख दी है जो इंसान का मुकद्दर बदल देती है, तेरे कलाम का नूर। और जब किसी बंदे के दिल में कुरान की हिदायत उतर जाती है तो उसका हर फैसला आसान हो जाता है, हर रास्ता खुल जाता है, हर डर मिट जाता है, हर बंद दरवाजा टूट जाता है, हर इच्छा दुआ बन जाती है और हर दुआ कबूलियत का रास्ता पकड़ लेती है। आज अल्लाह की अदालत में फरिश्तों ने तेरी किस्मत के पन्ने पर जो नया अध्याय लिखा है उसमें यही लिखा है, अब यह बंदा जो चाहेगा वह पाएगा, जो मांगेगा वह मिलेगा, जो सोचेगा वह उसके हक में लिखा जाएगा, क्योंकि इसका दिल अब उस किताब से जुड़ चुका है जिसमें 7 आसमानों के राज भी हैं और जमीन के हर दर्द की दवा भी। और उस वक्त तेरी रूह ने महसूस किया कि तेरे भीतर एक नई ताकत जागी है, एक ऐसा भरोसा जो पहले कभी नहीं था, जैसे कोई तहखाने में कैद रूह अचानक खुली हवा में आ गई हो, जैसे कोई सूखी जमीन पहली बारिश की बूंदों से महक उठी हो, जैसे कोई टूटी हुई दीवार फिर से खड़ी होकर मजबूत हो गई हो। यही कुरान का असर है, ये दिल को बदलता है, सोच को बदलता है, घर को बदलता है, किस्मत को बदलता है। अब तेरे साथ वही होगा जो तू सोचता है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल की सोच को अपनी रहमत से जोड़ दिया है। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तू चाहत रखता है, क्योंकि तेरी चाहत अब गलत नहीं बल्कि उस किताब की रोशनी से होकर गुजर रही है, और वह किताब कभी गलती नहीं करती। अब तेरी दुआ वहीं जाएगी जहां फैसले लिखे जाते हैं, अब तेरी आह वहीं सुनी जाएगी जहां रहमतें उतरती हैं, अब तेरी रातें खाली नहीं रहेंगी, अब तेरी जिंदगी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस दिन बंदा कुरान से जुड़ जाता है उसी दिन उसकी किस्मत का ताला खुल जाता है। और आज तेरे लिए वह दिन उतर चुका है। अब आज से, अभी से, हाँ इसी सांस से अपनी घड़ी देखना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई दिन नहीं, कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसी सांस नहीं लिखी गई जिसमें तुम्हारी तरक्की का कोई हिस्सा ना उतरे। अब जो भी होने वाला है वह सिर्फ बेहतर होगा, सिर्फ आगे बढ़ाने वाला होगा, सिर्फ रोशन करने वाला होगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे मुकदमे में यह फैसला सुना दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, हर घड़ी, हर पल, हर मोड़ के बाद वाले मोड़ तक। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत नहीं, पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मालिक खुद साथ हो जाए तो बंदा अकेला हो ही नहीं सकता। तू अब उस सफर पर चल पड़ा है जिसमें मुश्किलें सिर्फ नाम की हैं, हकीकत में वह सीढ़ियां बन चुकी हैं जिनसे चढ़कर तू अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूं, और आज तेरा गुमान रोशनी से भरा हुआ है, उम्मीद से भरा हुआ है, नई जिंदगी के भरोसे से भरा हुआ है। इसलिए अब आगे जो भी कदम होगा वह बरकत में डूबा होगा। तेरी दुआ सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे पूरे घर के लिए रहमत लाएगी। अब तेरे आंगन में उस तरह की खुशियां उतरेंगी जिनकी आहट भी पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे कोई पुरानी तंगी उठकर घर से निकल रही हो, जैसे कोई अदृश्य बोझ तेरे कंधों से उतर रहा हो, जैसे दरवाजों के ऊपर बैठी हुई बदकिस्मती की परछाई आज हमेशा के लिए उड़ चुकी हो, और अब उनसे खाली हुए दरवाजों पर फरिश्ते अपनी दस्तक देने वाले हैं। बरकत की दस्तक, तरक्की की दस्तक, आराम की दस्तक, नए दौर की दस्तक। आज से तू जो भी करेगा उसमें रब की मदद लिखी होगी, जो भी सोचेगा उसमें खैर लिखी होगी, जो भी चाहेगा उसमें मंजूरी लिखी होगी। तूने बरसों तक थके दिल से दुआ की, और आज वह दुआ तेरे घर के चारों तरफ चादर बनकर फैल चुकी है। ऐसी चादर जिसमें तंगाली की हवा प्रवेश नहीं कर सकती,
बद्दुआ का साया झांक नहीं सकता, दुश्मनी का जहर असर नहीं कर सकता। अब तेरे घर का हर कोना, हर कमरा, हर आंगन एक नई रोशनी से भरने वाला है। वह रोशनी जो सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, सांस में, हालात में, फैसलों में, कदमों में। अब तेरे घर की दीवारें भी गवाही देंगी कि यहां किसी की दुआ ने आलम बदल दिया है। तेरे घर की हंसी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, वह गहरी होगी, सुकून से भरी होगी, ऐसी होगी जैसे बरसों बाद बारिश आई हो और सूखी जमीन मुस्कुरा उठी हो। अब तेरी किस्मत की किताब में देर नहीं लिखी, सिर्फ तेजी लिखी है। तेजी तरक्की की, तेजी बरकत की, तेजी उस राह की जिस पर तेरे कदम अब फिसलेंगे नहीं बल्कि मजबूती से बढ़ेंगे। अल्लाह ने कह दिया है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और जब यह वादा उतरता है तो इंसान के खिलाफ चल रही सारी हवाएं पलट जाती हैं, सारी रुकावटें टूट जाती हैं, सारे ताले खुल जाते हैं और बंधे की जिंदगी उसके अपने हाथों में लौट आती है, मगर पहले से कहीं मजबूत, कहीं रोशन, कहीं बेहतर होकर। अब तेरे घर में ऐसी बारिश होगी जो सिर्फ पानी की नहीं, रिचका की होगी, खुशियों की होगी, चैन की होगी, नई शुरुआत की होगी। आज तेरे आंगन में खुशियों की ऐसी बौछार लिख दी गई है जिसे कोई आंख रोक नहीं सकती, कोई हालात दबा नहीं सकती, कोई कमी कमजोर नहीं कर सकती। तू अब अपनी जिंदगी का वह दौर शुरू कर रहा है जिसमें तू खुद अपनी दुआ का जवाब बन जाएगा। जिसे तू मांगेगा वह उतरेगा, जिसे तू चाहेगा वह मिल जाएगा। जिस राह पर कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, उसी राह पर अब फरिश्ते चिराग लेकर खड़े मिलेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने हार मानने के बजाय सब्र को चुना, टूटने के बजाय यकीन को पकड़ा और अंधेरों के बावजूद रोशनी की तलाश नहीं छोड़ी। अब रब कह रहा है, बंदे चल, मैं तेरे साथ हूं। और जब मालिक साथ हो तो सफर सिर्फ मंजिल नहीं देता, वह बंधे को नया जन्म दे देता है। और वह नया जन्म आज से शुरू हो चुका है। सबसे पहले अब जो बरकत उतरी है वह सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, आपके माता पिता, आपके भाई, आपकी बहनें, उन सब के कदमों में भी रख दी गई हैं। जैसे नूर की एक परत उनके पैरों के नीचे बिछा दी गई हो। अब जहां जहां भी वे कदम रखेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस रास्ते को चुनेंगे, जिस उम्मीद को पकड़ेंगे, वह काम नाकामी नहीं देखेगा, वह राह टूटेगी नहीं, वह कोशिश बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे घर के बड़ों के हर कदम को रहमत की रस्सी से बांध दिया है। उनकी चाल में अब वह वजन लिखा गया है जो सिर्फ मुकद्दरों को बदलता है। वह बरकत लिखी गई है जो घरों को ऊंचा उठाती है। वह नूर लिखा गया है जो फैसलों को आसान बनाता है। और याद रखना, जब घर के बड़ों के कदम बरकत वाले हो जाए तो पूरा घर आसमान से मिल जाता है, क्योंकि बड़ी उम्र वालों की नेकियों पर अल्लाह पूरी नस्लों की तकदीरें बदल देता है। अब जो भी आपके माता पिता करेंगे उसमें ऐसी आसानी होगी जैसे हवा खुद रास्ता साफ कर रही हो। अगर वे किसी काम पर विचार करेंगे, वह काम खुद उनकी तरफ खींचता चला आएगा। अगर वे किसी मुसीबत की तरफ देखेंगे, वह मुसीबत उनके सामने टिक नहीं पाएगी। अगर वे किसी नए फैसले की शुरुआत करेंगे तो पहले कदम पर ही मंजिल अपनी झलक दिखा देगी। यहां तक कि उनका घर से बाहर निकलना भी अब रहमत का मौसम साथ लेकर चलेगा। उनके रास्तों पर अदृश्य फरिश्तों की कतारें खड़ी रहेंगी जो उनके कदमों के नीचे से रुकावटों को हटा देंगी, नजरों की बुराई को मोड़ देंगी, तंगी के बादलों को दूर धकेल देंगी और दुश्मनी की हवा को बदलकर दोस्ती बना देंगी। और आपके भाई बहनों के लिए भी वही फैसला लिख दिया गया है। अब उनके कदमों में पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे देखना सिर्फ उन्हीं को पड़ता है जिनके आगे बढ़ने का वक्त नहीं आया होता। लेकिन अब तुम्हारे घर के लिए वक्त बदल गया है। अब वे जब चलेंगे तो रुकावटें पहले ही हट जाएंगी। वे जब सोचेंगे तो फैसले पहले ही लिखे मिलेंगे। वे जब बोलेंगे तो बात असर करेगी। वे जब हाथ बढ़ाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कामयाब हों, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दुआ अब सिर्फ तुम्हें नहीं ढकती, बल्कि पूरे घर को घेरे हुए हैं। तुम्हारी दुआ ने तुम्हारे घर की दीवारों को भी बदल दिया है। अब उन दीवारों पर चिंता का साया नहीं टिकेगा, तंगी का मौसम लंबा नहीं चलेगा, हार की आहट उस घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। तैयारी से जन्म लेता है। तेरी तैयारी लंबी रही है, इसीलिए फल स्थायी होगा। अब घर का वातावरण बदलेगा, बातचीत का स्वर बदलेगा और भविष्य की तस्वीर साफ होगी। यह बदलाव किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि क्रमिक सृजन है। और इसी क्रम में तू वह बनेगा जो कभी कल्पना में था,
अंततः यह स्वीकार कर कि यह यात्रा तुझसे कुछ छीनने नहीं बल्कि तुझे पूरा करने आई है। और जब पूर्णता का एहसास भीतर बैठ जाता है तब बाहरी प्रमाण अपने आप मिलने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां तू समझता है कि वादा पूरा हुआ और जो आगे है वह निरंतरता है, शांति है और ऐसी बरकत है जो बढ़ती रहती है। क्योंकि अब तू रास्ता नहीं ढूंढ रहा, रास्ता तुझे पहचान रहा है जब जन्नत के हिसाब के दरवाजे खोले जाते हैं और रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम्हारे हक का फैसला नीचे भेजा जाता है। तुम्हारी चुप्पी और अल्लाह का इंसाफ। तुम सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी तौबा और उम्मीद को जलाए रखा। जब सब ने तुम्हें छोड़ा तब भी तुमने नमाज और दुआ नहीं छोड़ी और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हालत, खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए हो। वहीं खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देंगे। यह कोई कहानी नहीं, यह भविष्य की घोषणा है। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हारे पीछे चलेंगे। क्योंकि ऊपर से हुक्म ए इलाही निकल चुका है कि अब इस रूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। एक रूह कंपा देने वाला सवाल जरूर सोचें। यहां रुककर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें भीतर तक झकोड़ देगा। अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंधेरा हो और कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुमने दुआ में मांगा था, तो क्या तुम्हारी रूह उस भारी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी अपने अतीत के जख्मों में ही उलझे रहोगे? इस सवाल का गहरा जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। दिव्य आह्वान और तुम्हारी इम्तिहान मेरे बच्चे, आज की तारीख साधारण नहीं है। यह उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे उनका फल अब मौजा बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक रिज्क, अचानक इज्जत, ये सब एक साथ तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी भी देता हूं। इस पैगाम को हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी इम्तिहान पूरी हो चुकी है। यदि तुम इस पैगाम को सुनने के बाद भी रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराते, तो तुम सीधे तौर पर उस इलाही कृपा का अनादर करोगे जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। क्या तुम अपने दुखों को खुद निमंत्रण देना चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की रहमत को निराश करना चाहते हो जो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ने आई है? याद रखना, अवसर का अपमान तकदीर को रूठा देता है। आगामी 24 घंटों का महामोर्चा। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानती होगी कि कुछ बदल गया है। जब तुम जागोगे तो तुम्हें निशानियां मिलने लगेंगी। कोई फोन, कोई पैगाम, कोई मुलाकात। ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है और रौनक शुरू होती है। नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ ईमान वालों के लिए है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए मुंतखब हो। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो उस इलाही हाजिरी का निशान है। तुम्हारी रूह पहचान रही है कि यह कलाम साधारण नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उन रातों की जब तुमने आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे। जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तब अल्लाह ने तुम्हारे हर एक आंसू को मोती बनाकर संजो कर रखा था। आज वही मोती तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं। परिवर्तन की आहट और नई पहचान। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। यह तब्दीली शोर मचाकर नहीं आएगी, यह फज्र की पहली किरण की तरह धीरे से आएगी। तुम्हारी तकदीर की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से कामयाबी लिखी जाएगी। रिस्क ही नहीं, दिल की सुकून भी तुम्हें मिलने वाली है। ऊपर यह मशवरा चल रहा है कि इस रूह को कितना दिया जाए, और फैसला हुआ है इतना ताकि दुनिया जान सके कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता।
बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था। लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए नूर बन सको। अंतिम कलाम और भविष्य की बुनियाद, ये जो बरकत आने वाली है, ये टिकेगी, ये पीढ़ियों तक असर डालेगी। अब गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि हाँ, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात और हर अवसर पहले से मुकद्दर होगा। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दूसरों को दिया है, अब तुम्हें मिलने वाला है। कर्ज का बोझ हल्का होगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे। बस एक बात याद रखना, शुक्र की चाबी कभी मत खोना। हर दिन रहमत का सहारा चैनल के माध्यम से इस ऊर्जा से जुड़े रहना। यदि तुम आज इस पैगाम को मान देते हो तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गौरवशाली दिन होंगे। अब उठो, अपनी आंखों से खौफ को पोंछ दो। जो रुकना था वह रुक चुका, अब तो बस बहने का समय है। बरकत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे अंग संग है, सुकून तुम्हारे भीतर है और पूरा कायनात अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ठहरो मेरे बच्चे, भागना मत। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी रूह ने उस कुदरत को स्वीकार कर लिया है जो साधारण इंसानों की पहुंच से बाहर है। पहले भाग में तुमने केवल दस्तक सुनी थी, लेकिन इस दूसरे भाग में तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां अल्लाह ने तुम्हारी दरिद्रता के अंत का हुक्म लिख दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए भी स्किप करना या बंद करना तुम्हारे जीवन की वह ऐतिहासिक भूल होगी जिसकी भरपाई तुम अगले कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। आज 24 दिसंबर की यह बेला गवाह है कि तुम्हारे संघर्ष का घड़ा भर चुका है और अब उसमें रहमत का अमृत गिरने वाला है। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे हामीम देवता आज मुतमिन हैं। सुनो, यह पैगाम इतना लंबा और गहरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मुश्किलों का जाल बहुत पुराना और जटिल था।